All of you have been submitted your tutorial sheet. लास्ट टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, बिजनेस सिस्टम प्लानिंग। So, in the continuation of business planning methodologies, I am going to discuss about another technology or another methodology known as computer aided planning tools. I already told you earlier in the second or third chapter in first unit that our development process is basically based on computer based solution. ठीक है, कस्टमाइज सोल्यूशन हमारा जो भी आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करेंगे वो हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम होगा. सो I also told you about the technology or the system approach known as CASE, computer aided software engineering or system engineering. So in that continuation, another important planning methodology is known as computer aided planning tools. Means there are various and generic planning features and tools that support our planning methodologies such as BSP, which is earlier, and CSF, critical success factor method, already discussed earlier in the lecture. So computer aided planning tool helps to implement these particular two methodologies, BSP and CSF, as well as also provide a good and strong mechanism, computer based software solution. ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट होगा, मैंने कई बार आपको सभी को बताया है कि हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, दीज आर कस्टमाइज्ड एंड कंप्यूटर ओरिएंटेड ओनली. आई बात समझ में? So there are definite number of planning environment and the planning techniques जो कि हम लोगों ने डिस्कस की थी. प्लानिंग टेक्निक कौन कौन सी थी? स्ट्रेटजिक,
tactical, operational. Don't confuse about the planning technologies, techniques and the planning methodologies. Planning technologies or techniques or types. These are directly indicate the various methods of planning. Wait for just a minute. Okay. So these are the planning types or techniques, and we are now discussing about the planning methodologies, means implementation techniques. प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा. दीज आर, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, दैट वाज सिनेरियो अप्रोच, आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, बिजनेस सिस्टम प्लानिंग एंड नाउ कंप्यूटर एडेड प्लानिंग टूल्स. These are methodologies. So first of all, you all must clear about the basic difference between planning technique types and planning methodologies. Methodologies are directly implementation process, implementation type, and the planning techniques, these are the types of planning. कितने टाइप से प्लानिंग की जा सकती है, और ये आफ्टर द implementation of the planning decided then how it is implemented into working model. तो ये प्रोसेस जो मेथोलॉजी है वो इसको डायरेक्टली इंडिकेट करता है. ये सब चीजों को सबको पहले क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को. सो बिजनेस प्लानिंग एंड एज वेल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर प्लानिंग और सिनेरियो अप्रोच, these all three methodologies are implemented with the help of computerized, computer based, using computer aided software engineering tools known as computer aided planning tools. There are various types of planning tools, and also I will give an example of, suppose ERP system आप develop कर रहे हैं, तो I am going to discuss this particular example. तो first of all पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि हो क्या रहा है. Also the planning activities and planning methodology used to define a planning environment, जो कि हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्लानिंग एनवायरनमेंट और द प्लानिंग टाइप्स, दीज आर सेम. एंड प्लानिंग स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर मेथोलॉजी इज सेम. सो डोंट कंफ्यूज अबाउट द टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड इन ड्यूरिंग द क्वेश्चन फ्रेमिंग. जब भी क्वेश्चन फ्रेम हो तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि स्ट्रक्चर मेथोलॉजी क्या होता है या आपकी प्लानिंग जो टेक्निक्स है या प्लानिंग इन्वायरमेंट क्या है, उसमें क्या अंतर है. दोनों में ध्यान रखिएगा, बेसिक डिफरेंस है और कंफ्यूज नहीं होना है. सो द प्लानिंग स्ट्रक्चर और मेथोलॉजीज डिफरेंट साइड एग्जाम्पल जैसे हमने आपको दिया था. स्ट्रक्चर का आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे CSF है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, सिनेरियो अप्रोच. लोगों ने प्रेजेंटेशन जब दे रहे थे तो वहां प्रेजेंटेशन में गलत स्लाइड चूज कर ली थी. एंड BSP, बिजनेस सिस्टम प्लानिंग, दीज आर स्ट्रक्चर और मेथोलॉजी इंप्लीमेंटेशन पार्ट. दीज आर द मेन जो आपका टर्म है, इन्वायरमेंट और टाइप्स ऑफ प्लानिंग. सो द ऑल डेटा स्ट्रक्चर प्लानिंग and planning implementation is carried out with the help of computer aided planning tools. There are lots of software in the context of case computer aided software engineering. Lots of software helps you plan for your good software solution, identify and experiment with ways to improve the planning process, relationship between planning structure. There are various tools, number of tools are available. Suppose अगर हम एक ERP मॉडल की बात करें, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या इंटरप्राइज मॉडल, so there are various tools for planning are available.
डिजाइन की अगर बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग डिजाइन की बात करते हो, हमने आपको बताया था पहले बैकएंड डिजाइन होता है यानी डेटाबेस डिजाइन। तो नंबर ऑफ टूल्स आर अवेलेबल टू डिजाइन योर डेटाबेस। सपोज करिए, वेट फॉर सम मिनट, वेट फॉर वायु। Okay, so I am going to explain an ERP system or enterprise model where lots of activities used in during the planning of system. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सपोज करिए डेटाबेस डिजाइन। So there are number of tools available to design your database. With the help of these tools, सपोज करिए स्मार्ट ड्रा है। स्मार्ट ड्रा एक टूल होता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस, प्रपोज डेटाबेस को डिजाइन कर लेते हैं, और आल्सो यू कैन डायरेक्टली स्केच और आउटलाइन द डिपेंडेंसीज ऑफ टेबल्स विद द हेल्प ऑफ दीज स्मार्ट ड्रा टूल। इसमें आप क्या करते हैं, डायरेक्टली टेबल बनाते हैं, टेबल के कॉलम होते हैं, तो इनके बीच में ये किस तरह से रिलेट होता है इसको आप पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Suppose is there any necessity to draw your flow chart or DFD or ER diagram? I already told you in previous lectures. तो आपके जितने ER डायग्राम है या आपके DFD है या आपका फ्लो चार्ट, इन सबको बनाने के लिए भी टूल्स अवेलेबल हैं। स्मार्ट ड्रा है और डिफरेंट वर्ड आर्ट में भी यू कैन ड्रा योर फ्लो चार्ट एज वेल एज योर ER डायग्राम। सो जो MS वर्ड है विल वर्क एज योर केस टूल। ओके, जो डिफरेंट आपके डेटाबेस हैं, जैसे सपोज करिए MS एक्सेल है, MS एक्सेस है, पावर पॉइंट है। मैं डायरेक्टली वो टूल्स की बात कर रहा हूं जो आपके यहाँ इजिली सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। तो दीज आर ऑल केस टूल्स एंड इट हेल्प्स टू प्लान योर प्रपोज्ड और फ्यूचर सोल्यूशन। कोडिंग करनी है, कोडिंग के लिए वहां पे एक फ्रंट पेज या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो अवेलेबल होता है जिसमें कि आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं एंड बैक साइड में आपकी कोडिंग ऑटोमेटिकली वहां पे राइट हो जाती है, और उसके बाद उनको आप सिर्फ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट जैसे ही आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, वो कोड वर्क में आपके फंक्शन में आ जाता है। So these are the facility of case tool and this type of planning is known as computer aided प्लानिंग टूल्स। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे एक ERP का मैंने एक एग्जाम्पल या डायग्राम बना के रखा हुआ है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिस इज ERP सिस्टम। इन द सिस्टम these are the main functions. First of all, the organization. Organization means your organization and the development side organization. तो organization में these are the main functions or the main categories. Work groups are there. Okay, different departments are there, different divisions are there, and corporate environment also in your organization. So these reports to the organization. These department report to the organization, यानी main personnel top manager of the organization. ये हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि प्लानिंग किस तरह से होती है। Organization is directly responsible for the business. Business comprises different functions, process, and activities. These business achieves the critical success factors and objectives. जब भी आप बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो उनका मेन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स मीन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट एंड प्लानिंग ऑब्जेक्टिव एज वेल एज मेन गोल और मेन ऑब्जेक्टिव्स। जब बिजनेस की बात करते हैं तो आल्सो इट क्रिएट और यूजेस डेटा मींस डेटाबेस, आपका जो भी सब्जेक्ट डेटाबेस है, डेटा एंटिटीज,
record and the basic element symbol known as entity. Also, these are the input or outputs from the whatever system you are going to build, and system comprises or contains these are applications and modules. या तो कोई एप्लीकेशन होगा या वो मॉड्यूल में आपका बाइफरकेट होगा. I already told you in previous lecture and another previous lectures that our development procedure is directly based on the मॉडुलर पैटर्न पे हमारा सारा डेवलपमेंट प्रोसेस बेस्ड होता है. यानी पूरा एक एप्लीकेशन ना होकर के वो मेन्यू बेस्ड और मॉड्यूल बेस्ड ही डेवलपमेंट प्रोसीजर आपका इंप्लीमेंट होता है. एंड सिस्टम परफॉर्म्स अबाउट द एक्चुअल नीड और द रोल और टारगेट डिसाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन. तो दिस इज डायरेक्टली रिलेट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. एंड another category, these are project and sub project. Project is your complete solution. There are three categories: project, process and product. Process is a small working module, project is the combination of working module, and product is the combination of main working module as well as user support system, user manual. Then it becomes as product. So your product or project is divided into main project and sub project that impacts also the growth or the actual objective whatever achieved by your organization or the business. These are the ERP system. This is the basic model, computerized model of your enterprise or ERP system. ठीक है. इसमें देखिए किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिए, ना समझ में आया हो, ये डायग्राम पे किस तरह बेस्ड है, क्योंकि आपको मेन कॉन्सेप्ट ही समझ में ना आना है. मीन्स इन शॉर्ट और इन ब्रीफ वी कैन मेक अ कंक्लूजन, वी कैन ड्रॉ ए कंक्लूजन दैट all the process, all the planning methodologies is work out for computerized solution only and with the help of computer aided planning tools or case tools. मतलब कोई भी हमारा वो मैनुअल प्रोसेस नहीं होगा, कोई अनऑर्डिनरी इनफॉर्मल रिटन प्रोसेस नहीं होगा, वो सारा फॉर्मल एंड कंप्यूटराइज्ड बेस्ड जितने भी आपके केस टूल्स उन्हीं पे बेस्ड होगा सारा सोल्यूशन. वो चाहे टेक्निकल कोडिंग हो, चाहे डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन हो, कनेक्शन हो, इवन यूजर मैनुअल जो आप लिखते हैं यानी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, इट इज आल्सो ऑन द बेस्ड ऑफ केस टूल. इसमें भी आप जो यूज करेंगे मेन वो केस टूल ही होंगे. So please have a look on this diagram, and if any problem or any confusion, please feel free to ask. I will provide a detailed note about this topic. These are the rough or demonstration of computer aided planning methodologies tools. एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत हो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. Means this is the example, this is the basic example which directly result and environment as well as planning implementation, इनके बीच में डायरेक्टली रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है. जो भी आपका प्रोसेस मॉडल है एंड डेटा मॉडल, जो भी सॉफ्टवेयर बनता है वो 3 टायर आर्किटेक्चर का होता है. उसमें मेन यूजर इंटरेक्टिव पार्ट होता है, डेटाबेस पार्ट होता है एंड द बिजनेस लॉजिक्स. देखिए एक बार अंडरस्टैंड, देखिए समझिए. आकर्ष हाँ बेटा, डायग्राम देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए.
राज, राज, राज राठौर, ऋतिक प्रकाश, डायग्राम शो हो रहा है आपको? नहीं, डायग्राम शो नहीं हो रहा है आपको? आप बताइए, आपने पहले क्यों नहीं बताया? नाउ आर यू आर केपेबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम or the working of this diagram, working of the actual organization relationship of जो हमने ये आपकी फोर पार्डन व्हाट आर यू सेइंग? भाई इंटरनेट कनेक्शन सही कराओ, ब्रॉडबैंड लगवा लो हमारी तरह। टाइम पूरा निकाल दिया तुमने। कशिश गुप्ता, कशिश गुप्ता, आर यू देयर? कल्याणी, हाँ, देख पा रही हैं डायग्राम को? ओके। हर्ष अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, व्हाट अबाउट योर नेटवर्क? देख लो बेटा, नेटवर्क वगैरह सही रखो, मैंने इसलिए बताया। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक कि आप एकेडमिक टूल्स को अपडेट नहीं करेंगे तब तक नहीं चीजें ग्रेस्प हो पाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अनुपम सिंह, आई थिंक यू हैव ब्रॉडबैंड कनेक्शन। पता चला था मुझे तुम्हारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। तो आर यू कैपेबल टू सी द डायग्राम एंड यू आर अंडरस्टैंड द डायग्राम? ओके। किसी को इस पर्टिकुलर प्लानिंग मेथोलॉजी में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, या अब तक हम लोगों ने 4 प्लानिंग मेथोलॉजी डिस्कस की है ऑलरेडी। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, सिनेरियो अप्रोच, बिजनेस सिस्टम प्लानिंग, एंड दिस आर कंप्यूटर एडेड प्लानिंग टूल्स। किसी में कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लीजिए, बिकॉज आई एम मूविंग नाउ टू अनदर टॉपिक, कंट्रोल्स। राज, हाउ आर यू? ठीक हो? अच्छा, बिजनेस सिस्टम प्लानिंग देखिए, बेसिकली बेस्ड ऑन द 2 टेक्निक्स that are top down and bottom up. Before going to explain these 2 techniques, top down or bottom up, first of all, this is also a structured planning methodology that assists an organization in developing information system plan to satisfy short and long term information system requirement, which is already earlier told in the प्रीवियस लेक्चर। शायद मुझे लग रहा है आपने मिस किया था बेटा। तो सबसे पहले जो बिजनेस सिस्टम प्लानिंग है, बेस्ड होता है, ये जो पहले है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड सिनेरियो अप्रोच में हमने इस पर्टिकुलर जो प्लानिंग की जो टर्मिनोलॉजी है इसको स्किप कर दिया था कि व्हाट आर अवर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, व्हाट आर अवर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। बिजनेस सिस्टम प्लानिंग basically focus on these 2 type of planning activities
कि कौन सी हमारी लॉन्ग टर्म है एंड शॉर्ट टर्म है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पूरी प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ये नहीं कि अभी हमारा टाइमिंग ये काम हो जाए उसके बाद फिर उसको स्किप कर दें। हम जब बात करते हैं तो जो टाइमिंग है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म पे ज्यादा आप फोकस करते हैं। सिनेरियो अप्रोच एंड क्रिटिकल सिस्टम अप्रोच में ये नहीं हो पा रहा था। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दीज टू प्लानिंग मेथोलॉजीज विच इज कवर्ड इनटू बिजनेस सिस्टम प्लानिंग, जिसमें ऑल बिजनेस एस्पेक्ट जितने भी आपके बिजनेस एस्पेक्ट हैं वो सारे यहाँ पे यूज हुए थे। एंड आल्सो दिस इज द टेक्निक और मेथोलॉजी विच हैंडल्स पीस बाय पीस, यानी पार्ट बाय पार्ट जो प्लानिंग है उसको इंप्लीमेंट करती है। एक एक पार्ट को सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, प्लान किया जाता है। पूरा सिस्टम बल्क में प्लान नहीं होता है। होल सिस्टम इज बाइफरकेटेड इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस एंड स्मॉल स्मॉल सब मॉड्यूल्स, देन ओनली it is going to develop a good and big plan about your proposed system or solution. There are two techniques, top down and bottom up. In top down सबसे पहले हम मेन मॉड्यूल या मेन वर्किंग मॉड्यूल को प्लान करते हैं, देन सब्सिडरी मॉड्यूल, देन कम टू द लेस सब्सिडरी मॉड्यूल एंड फाइनली लीस्ट सब्सिडरी मॉड्यूल को प्लान करते हैं। Whereas in bottom up planning methodology in context of business system planning, सबसे पहले लीस्ट प्रायोरिटी जो अपने आपने जिसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दे के रखा है उसको सबसे पहले प्लान करते हैं। उसके बाद फिर उसके अपर वाले सब मॉड्यूल को प्लान करते हैं, फिर उसके अपर वाले सब मॉड्यूल को प्लान करते हैं एंड आफ्टर कम टू द बिग गोल ऑफ द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड द प्लान। ये अंतर है। बिजनेस सिस्टम प्लानिंग ये कहता है हमें बिजनेस के हिसाब से चलना है, हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को ध्यान रख करके करना है, बट दीज फैक्टर्स टोटली मिस्ड इन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड जो आपने सिनेरियो अप्रोच पढ़ा था उसमें सिनेरियो में पूरी कहानी बता दी जाती है, पूरी सिनेरियो को एज ए प्ले रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। तो इसमें जो छोटे और जो आपके मिडिल और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेथोडोलॉजीज के टूल्स हैं वो मिस हो जाते हैं। दीज आर द बिजनेस सिस्टम प्लानिंग। प्रोसेस चाहे बॉटम अप की बात करें चाहे टॉप डाउन की करें लगभग सेम होते हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन दूसरी तरह से होता है। मैंने आपको एक डायग्राम से भी शो किया था, ये प्रीवियस हमारा लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर के मैंने आपको नोट जब डिलीवर किए थे तो मैंने आपको ये डायग्राम से भी शो किया था कि बिजनेस मिशन एंड ऑब्जेक्टिव जहां हम बात करते हैं ये हमारा सबसे ऊपर रहता है, ये हमेशा रहेगा। लेकिन जब हम प्लान करते हैं तो डायरेक्टली इसको ले करके चलते हैं। फिर बिजनेस प्रोसेस में आप चले जाते हैं, देयर आर मेनी एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग बिजनेस प्रोसेस। कम टू द बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन टेक्निक्स एंड कैपेबिलिटीज नीडेड, डायरेक्टली इन पे फोकस कर देते हैं। एंड दीज कंप्राइजेस आईटी आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा नेटवर्क which are the actual component or the resource of any information or management information system. But into the comparing with bottom up approach, directly contrast, यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और नेटवर्क जो हमारे मेन है। पर्सनल स्किप्ड है यहाँ पे क्योंकि पर्सनल इज ऑलरेडी इन्वॉल्व, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा होगा क्योंकि ये सारा प्रोसेस with the carried out with the help of your personal manpower। तो यहाँ पे पहले जो जिनको हम लोग लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन बॉटम अप अप्रोच में इनको फर्स्ट और सुप्रीम प्रायोरिटी के साथ हैंडल करते हैं। देन कम टू द बिजनेस आईटी एंड कैपेबिलिटी नीड्स, देन कम टू द बिजनेस प्रोसेस और एप्लीकेशन, एंड फाइनली जो आप अचीव करते हैं या जो आपका मेन टारगेट होता है, मेन गोल होता है, बिजनेस मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, उस पे ध्यान देते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। दीज आर द टू मेन अप्रोचेज ऑफ बिजनेस सिस्टम प्लानिंग एंड आल्सो डिफरेंस ऑफ टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप्रोच। अंडरस्टैंड राज? कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। देखिए ये सारे जितने भी टॉपिक हैं ये मेन बेस्ड हैं आपके कॉन्सेप्ट पे,
अभी 4 सेमेस्टर के बाद जब आप हमर ट्रेनिंग करने जाएंगे, और अभी मैं आपके 5th सेमेस्टर जो आपके सुपर सीनियर उनका वाइवा ले रहा हूँ, तो कुछ बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, अभी इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो डायरेक्टली प्रैक्टिकल अप्रोच सब्जेक्ट है और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच सिस्टम है, तो ही वो अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर पा रहे हैं। नहीं तो बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज उन्होंने सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर लिया, उनका प्रोग्राम या प्रोजेक्ट तो चल रहा है, बट बेसिक्स नहीं पता है, इसलिए वो नंबर नहीं पा रहे हैं। उनमें से कई लोग का मैं रिवाइज या रिशेड्यूल और रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने बोला है सब, कई लोगों को, जिन जो ये ऐसे बच्चे हैं, कुछ बच्चे जिन्होंने आके अच्छा काम किया है और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। until your concept is not clear, you can't develop a good software solution. कुछ नहीं होगा, सब कुछ काम होगा, रिपोर्टिंग मिस होगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन 5th सेमेस्टर मिस्ड आउट एक्चुअल रिपोर्टिंग। नहीं बेटे, 5th सेमेस्टर से ही समर ट्रेनिंग एक आपका सब्जेक्ट होता है। समर ट्रेनिंग में आप टेक्नोलॉजी जिसमें आप प्रेफर करते हैं, जो आपको ज्यादा अच्छी लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो समर ट्रेनिंग में आप टेक्नोलॉजी को लर्न करते हैं, सीखते हैं, वर्क करते हैं, और एक सॉफ्टवेयर एक प्रोजेक्ट डेवलप करना होता है, उसका वाइवा होता है। समझ रहे? और वो 50 मार्क्स का होता है। एंड जो लास्ट में फाइनल 6 सेमेस्टर में इसी समर ट्रेनिंग बेस्ड पे, और जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है इस पे ही बेस्ड, प्रोजेक्ट दूसरा होगा, सेम नहीं होता है, इस पे ही बेस्ड आपको लार्ज मेजर प्रोजेक्ट बनाना होता है, वो 150 मार्क्स का होता है। और उसमें भी 50 मार्क्स जो होता है वो आपका फर्दर इसी का बेस्ड सेमिनार होता है। तो टोटल 200 मार्क्स का वहां पे ये होता है। लैब्स लगभग वहां पे खत्म हो जाती है, जो आपकी इधर उधर आप लैब कर रहे हैं, सीबीएसटी की लैब हो गई आपकी, है ना, और किसकी, जावा की लैब है, और कौन सी लैब है, वो होंगी अभी, इट विल टेक सम टाइम। हाँ, होंगी होंगी अभी, जैसे जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा क्लासेस सही से फंक्शन होगी, क्योंकि लैब कोशिश यही है कि ऑफलाइन मोड में कराई जाए। ओके, नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस दीज आर कंट्रोल प्रोसेस। आप में से किसी एक ग्रुप का कंट्रोल और कंट्रोल टाइप्स का शायद मैंने टॉपिक भी दिया हुआ है, कंट्रोल प्रोसेस। व्हाट इज कंट्रोल? कैन एनीवन टेल मी अबाउट द कंट्रोल? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? टेल मी अबाउट कंट्रोल, वॉलेंटरली बताइए, अदरवाइज आई विल टेक नेम, आई विल अनाउंस नेम। आर्कृतिक, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? नहीं, स्पेसिफिक अगर हम बात करें इन द टर्म ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, तो व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? स्पेसिफिक की तो आप बात छोड़िए, बहुत बड़े पर्सपेक्टिव की बात ही नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल से आप समझते करते हैं। कंट्रोल इज नॉट ऑर्डर, कंट्रोल इज नॉट ऑर्डर। कशिश, रिपीट अगेन।
Kashish, repeat again. To direct the people. Okay. Anyone else? और भी कोई बताना चाहेगा? हो? सुचिता? सुचिता ने नहीं बोला, किसने? हाँ, सुचिता ने बोला। हाँ हाँ, दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल check. It is not order. It is directly supervise, check, guide and evaluate the performance of the going on process. समझ रहे हैं? कंट्रोल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ ऑर्डर ही देंगे. कंट्रोल का मतलब ऑर्डर के साथ साथ सुपरवाइज करना, सुपरवाइज, गाइड, चेक, मॉनिटर द परफॉर्मेंस of the going on process, task, evaluate. So these are the technical terms which helps to motivate the process, and the personnel which is involved in that process is known as control. समझ रहे हैं? जब तक हम सुपरवाइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ये हो जाना चाहिए, हम ये कहेंगे कि ये हो जाना चाहिए, एंड आल्सो give some guidance, also tell some rules, and whenever it is necessary to help, and also give hint or solution, तब हम जाकर के उसको कंट्रोल कर पाएंगे. इट इज बैलेंस्ड एक्सरसाइज और बैलेंस एक्टिविटी टू अचीव अ गुड एंड डिजायर्ड सक्सेसफुल टास्क. बात समझ में आई? एक्चुअल में कंट्रोल ये होता है, समझ रहे? मॉनिटर करना है. हम जैसे अब इस समय क्या कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, साथ ही साथ आपसे इनपुट्स भी ले रहे हैं, क्विज भी देते हैं, क्विज के भी जो है सोल्यूशन रिलीज कर रहे हैं, कहीं कोई डिस्कशन होता है उस पर बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से भी बात कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं. तो ये हम लोग का एक कंट्रोल प्रोसीजर चल रहा है. ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपनी ही बात कहें, आपकी बात सुने ना, या हम सिर्फ आपकी ही बात सुने, अपना सिलेबस पे, पेज पे ध्यान ना दें. तो ये सब क्या होगा? अनकंट्रोल. तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने टास्क एंड गोल से भटक जाएंगे. दीज आर द डिसएडवांटेज whenever we did not follow any control procedure. जब आप इनपुट की बात करते हैं, अभी आप जब प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो हम लोग ने एक, सपोज करिए, एक फॉर्म बनाया. फॉर्म पे आपने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट बॉक्स बनाए, ठीक है, इनपुट्स बॉक्स बनाए. अब उसमें आपने किसी बॉक्स पे लिखा मोबाइल नंबर. मोबाइल लिख रहा है, मोबाइल नंबर आपने कहा लिखने के लिए, तो जो यूजर है वो अवेयर नहीं है, या वो जानबूझ करके अवेयर है बट फिर भी वो सिली मिस्टेक करना चाह रहा है. इंटेंशनली उसने क्या किया, मोबाइल नंबर की जगह एबीसीडी लिखना शुरू कर दिया. तो अगर आपने वहां पे कंट्रोल नहीं लगाया, चेक नहीं लगाया, तो आपके डेटाबेस में इंस्टेड ऑफ मोबाइल नंबर इन डिजिट्स, इट इज रिकॉर्डेड इन अल्फाबेट्स. तो हमें क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, और हमें बताना है हमें अल्फाबेट एक्सेप्ट नहीं करने. समझ रहे हैं? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंट्रोल. और इसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि वो उसे पता होगा या इट इज ऑब्वियस या हमने ऑर्डर दे दिया. हम डायरेक्टली एक उसको मैसेज से बताएंगे कि अल्फाबेट्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन द कॉलम और द इनपुट बॉक्स ऑफ मोबाइल नंबर. एंड आल्सो अगर हमने ये चेक कर लिया तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि मोबाइल हमारा 10 डिजिट का हो. ये भी हमें ध्यान रखना है. ये ना हो कि मोबाइल में उसने 3-4 डिजिट ही लिख दी है. आल्सो अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं कंट्री कोड भी आ जाए, तो उससे पहले भी आपने ये प्रोविजन किया. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंट्रोल. ईमेल लिख रहा है, ईमेल लिखा, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर ऐड नहीं किया, मतलब @ जो है, जो आपका gmail.com या yahoo.co.in ये सब नहीं लिखा, सर्विस प्रोवाइडर नहीं लिखा, डोमेन नाम नहीं लिखा,
तो हमें उसको ये बताना है और डेटा एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें गाइड करना है, प्रॉपर मैसेज से बताना है और एक्सेप्ट नहीं करना। यानी हम ऑर्डर भी दे रहे हैं, साथ ही साथ गाइड भी कर रहे हैं, उसको बता भी रहे हैं कि भैया 10 डिजिट का ही लिखना है, यहाँ पे नंबर्स ही लिखे जाएंगे, अल्फाबेट एक्सेप्ट नहीं होगा। ये मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स आर important and necessary carried out during the implementation of your planning। जो भी आपने प्लान किया उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहां पे कंट्रोल की जरूरत होती है। सेम इसी तरह आउटपुट की बात होती है। जब आप आउटपुट की बात करेंगे यानी आपको कहीं से रिपोर्ट लेनी है तो हमको चाहते हैं कि रिपोर्ट जो मिले वो एक्सेल फॉर्मेट में हो, पीडीएफ फॉर्मेट में हो, या हमारा जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें ही हमें रिपोर्ट मिलनी चाहिए। तो वहां हमें मेंशन करना है और वो भी कंट्रोल प्रोसीजर से ही कंट्रोल हो पाएगा कि जो यूजर ने रिक्वेस्ट दी है अकॉर्डिंग दैट रिक्वेस्ट ही इज केपेबल टू एक्सेप्ट इट्स रिक्वायर इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए होती है, अदरवाइज वो ना हो। टेक्स्ट फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में आए, जो जो हेडर चाहिए वो हेडर आए। तो इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स यूज होते हैं व्हेन यू आर इंप्लीमेंट योर प्लानिंग इनटू वर्किंग मॉडल। So to maintain the quality and performance of an organization, और अगर अपनी बात करें development organization, it is necessary to control the development process. The resources of information system, already told you these are hardware, software, data, people या personnel, and as well as network. These are our main components, main resources, जिस पे ही सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड होता है, की एलिमेंट्स। तो ये जितने भी आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क इन सब की बात कर रहे हैं, दीज आर इन द कंट्रोल्ड फॉर्म। रिसोर्सेज की तो हम बात कर रहे हैं बट इज इन कंट्रोल्ड फॉर्म। कंट्रोल फॉर्म इन मीन्स इन आवर डिजायर्ड रिक्वायरमेंट, इन द फॉर्म ऑफ अवर डिजायर रिक्वायरमेंट। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कंपनी का डेटा मिल गया, कंपनी का डेटाबेस मिल गया, सपोज करिए एमएस एक्सेस में, बट वी आर गोइंग टू डेवलप विद न्यू टेक्नोलॉजी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एसक्यूएल सर्वर। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये नहीं कि हम एमएस एक्सेस में काम करने लगेंगे। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है, केस टूल अवेलेबल है, हम क्या करेंगे उसको एक्सपोर्ट करा देंगे या इंपोर्ट करा देंगे, जो भी हमें करना होगा। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट फैसिलिटी को यूज करते हुए वाइस वर्सा कन्वर्जन, एमएस एक्सेस टू एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर टू एमएस एक्सेस, हम उसको एक्सपोर्ट करा देंगे अपने डिजायर्ड फॉर्मेट। तो हमने क्या किया, उसको कंट्रोल कर लिया। हमने डायरेक्टली उसको ये नहीं कहा कि नहीं उसी फॉर्मेट में हमें चाहिए, हम सारी वर्किंग हम करेंगे क्योंकि हमको वो पे कर रहा है, और डेटा उसी फॉर्म में रखेंगे विच इज नीडेड इन अवर डिजायर्ड सिस्टम। जो हमारा डिजायर्ड सिस्टम है उसमें ही डेटा हमारा होना चाहिए। सो द इफेक्टिव कंट्रोल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी। It provides security, accuracy. These are two technical terms which is provided after the implementation of effective control. Also integrity, safety of any unauthorized person which is going to access your data. So effective control provide information system security, accuracy, integrity. Integrity means originality, not duplication is allowed there, and also safety of information system activities and resources. Safety means जिस फॉर्म में डेटा आपको चाहिए और यूजर ने जिस फॉर्म में डेटा आपको इनपुट किया है उसी फॉर्म में डेटाबेस में डेटा सेव हो जाए, एंड वाइस वर्सा व्हेनेवर यूजर वांट्स टू रिक्वायर द इंफॉर्मेशन और एनी रिपोर्ट फ्रॉम योर सिस्टम, तो उसी फॉर्म में उसको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड हो जाए। ये नहीं कि हमने सिर्फ एक बार इनपुट कर दिया, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो गई,
हमेशा जब इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं फॉर द बेसिक एंड मीनिंगफुल पर्पस एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स आल्सो, तो जब यूजर रिट्रीव करे, एक्सेस करे, तो उसको उसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड होकर के आपके सिस्टम के थ्रू मिलनी चाहिए। तो these approaches are known as control. This process is known as control. Also, control can minimize errors, fraud and destruction in the inter-network information system that are interconnect today's end users and organizations. इस इन्वायरमेंट में हम लोग जो लॉगिन बता रहे हैं, लॉगिन बना रहे हैं, फिर हमने कहा कि नहीं आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही एंट्री करनी है, ये सब क्या है, हमारे कंट्रोल प्रोसेस है जिससे मीनिंगफुल पर्पस में डेटा को हम सर्व कर पाए। अंडरस्टैंड? तो व्हाई इट इज नेसेसरी टू इंप्लीमेंट कंट्रोल फॉर योर प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। तो पहले तो आपको यह जानना है कि कंट्रोल जरूरत क्या है, कंट्रोल से होगा क्या। Also, effective control provide quality assurance, which is main goal of any organization. Quality assurance and TQM, जो भी हम डिस्कस करेंगे, हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी रीड वंस, रीड मोर, राइट वंस, जो वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना है। हमने आपको जब डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग बताई थी तब भी बताया था कि प्रोग्राम इस तरह से लिखना चाहिए, प्रोग्राम इस तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए, उसकी डिजाइनिंग एल्गोरिथम की ये हेल्पफुल हो फॉर मोर देन वन लॉजिक्स, वन कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व मोर देन वन प्रॉब्लम। ये सब पे अप्लाई हो जाए, हमें वो प्रोग्राम, वो एल्गोरिथम, वो प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। देन इट्स बिकम अ प्रोडक्ट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो बेसिक आपके गोल्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड अबाउट द कंट्रोल। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। और बेसिकली वी आर डेडिकेटेड कंप्यूटराइज सोल्यूशन, सो व्हेनेवर वी आर talking about computerized the computer based information system, it must be free from errors and fraud, also able to provide information system product higher quality and user manual। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो हमने आपको बताया। कोई भी सॉफ्टवेयर आपका प्रोडक्ट तब बनता है जब आप उसको सेटिस्फैक्टरी प्रोजेक्ट बना के दें एंड आल्सो सपोर्ट में यूजर गाइड, यूजर मैनुअल भी प्रोवाइड करें, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, तब वो जाकर के एक प्रोडक्ट बनता है। यानी प्रोडक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड यूजर मैनुअल और डॉक्यूमेंटेशन। In next lecture, I also discuss about the types of controls. There are various types of control: information system control, procedure control, and facility control. And these three categories also subcategorized. इसमें इन थ्री कैटेगरीज में भी फर्दर सब कैटेगरीज है which will be discussed in our next lecture. अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दीजिए and don't leave the class. Hurry up. Don't leave the class. Otherwise, you will absent. You will mark as absent.